Hello friends, welcome once again. In this video, we will take a topic identifying and eliminating performance barriers. हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है. इवन कोरोना इज़ अ बिग प्रॉब्लम. आपके एसएसबी का प्रिपरेशन में भी काफ़ी चैलेंजेस आता है. एंड इफ़ यू आर बॉर्न you will have to handle problems in life. So sometimes we have problems within us. There are problems on the world outside, but there are also problems within us जो हमें external problems को handle करने में एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है. इसका मतलब क्या है कि इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द परफॉर्मेंस बैरियर्स विद इन यू, देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू हैंडल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड, इंक्लूडिंग योर प्रिपरेशन फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स. और हम एकेडमी फॉर लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप टूल्स के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी डोमेन विच यू आर वर्किंग. सो आप सबको पता है कि जीवन में, जीवन रूपी इस यात्रा में वी विल एनकाउंटर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड हमें उसको एक सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर हमको हैंडल करना नहीं आया तो life can be very very stressful and very draining. So today, as part of the eliminating and identifying and eliminating performance barrier, I will introduce to a concept that is the inside out approach to problem solving. Inside out approach to problem solving. Now this skill will not only help you to prepare yourself for life as well as for SSB. After all, SSB is a subset of life. So we will try and understand this, है ना? Inside out approach to problem solving. So that we'll see. Now before that, I want to give you an important information. That is, we are holding a free gap analysis workshop on 2nd September 2020. That is tomorrow. The timing is from 6 p.m. to 8 p.m. So Wing Commander Sandeep Raj sir will be conducting it. He was an interviewing officer with the Air Force Selection Board at Dehradun. Right now he's working with me. And registration is compulsory, even though the workshop is free. So to register, you have to contact at 7088993444. You have to send a WhatsApp message on this number, and the password and the ID will be shared with you. Please do not send me any request for the password and ID for this workshop, because Wing Commander Sandeep Raj is coordinating it. So I'll request you to WhatsApp on the given number 7088993444. Send a WhatsApp and you'll get those details, and kindly request you to share it so that large number of people can benefit out of this workshop. It is tomorrow, 2nd September 2020, from 6 p.m. to 8 p.m. That is one. So let's come back to this. Now, as part of preparation for the SSB interview, one thing it have been very very clear to you that it is a give and take relationship. Your aspirations to get 2 stars on the shoulder can only be met when you give them what they are aspiring from you as a potential candidate. And unless you align with their expectation, your expectation will not be met. So it's a give and take relationship. And as a candidate, you have to give first. Only then you will get what you want. That's 2 stars on the shoulder के लिए recommendation. And you also know, as stated by Commandant Selections at the South, the selection from the SSB is very low. It is 3.6%. इसका मतलब है it is only 3.6% approximately whose aspirations of becoming an armed forces is getting fulfilled. इसका मतलब है almost 97% people, 97 and 96% people, they are doing something fundamentally wrong. So let us understand कि ये क्या है. And उसका बड़ा simple example है कि जब तक आप एसएसबी में जाते हो, अपने प्रिपरेशन करते हो, whether you go for a coaching or you do your self preparation, unless you understand what are the barriers which are pulling you back. देखो, इतना बड़ा लोड लेके आप आगे नहीं जा सकते हो. This can be simply your power of expression. This can be simply your problem solving skills, stress handling skills, emotional understanding. किसी में भी deficiency हो सकता है ना. लाइफ के 4 टांग हैं, 4 pillars of life: physical, intellectual, emotional, the value system. The problem can be in any, unless you are able to identify them and eliminate them before you go for the SSB interview, it becomes a distant dream, है ना. आप कहीं ना कहीं टेस्टिंग टूल में उलझ कर रहेगा TAT WAT में. That mindset has to change. सो आपके इन बैरियर्स को रख के आप एसएसबी में जाके इन बैरियर्स को छुपा नहीं सकते. सो वन ऑफ दी कोचिंग सेंटर में सर बोलते हैं कि हाइड कोर क्वालिटी. यू कैन नॉट हाइड कोर क्वालिटी. हाउ कैन यू हाइड? इट विल बी विजिबल टू यू. एक पूरा पिलर टूटा हुआ और आप बोलते हो उसको छुपा दो, नहीं होगा. वो तो
बोल रहे हैं, ऐसे गलत बोल रहे हैं. सो you must know how to do accurate SWOT analysis. Unless you know what are your strengths and weaknesses, you cannot carry out this expectation alignment. आपके जो strengths है, ध्यान से सुनना, for example, आपके जो strength है, they will become the cause. So your strength will become the cause, and these cause will act as an effect in the SSB. तो SSB में ये क्या होंगे? They will produce effect. And those effect will be desirable effect because the causes are desirable causes hai. This is a desirable, your strengths are desirable cause, and the desirable cause will produce desirable effect in the SSB. Similarly, your weakness, they are undesirable cause, and undesirable cause will produce undesirable effect. तो अगर आप recommend होना चाहते हो, that recommendation is a desirable effect. Recommend जो होना चाहते हो, recommendation, it is a desirable effect, and for desirable effect you must produce desirable causes now मतलब as part of your training. But आप अगर आज dead body का ड्रामा और उल्टा पुल्टा TAT में उलझ जाते हो, that is undesirable cause, and undesirable cause cannot produce desirable effect. जब तक आप इनपुट को चेंज नहीं करोगे, आउटपुट चेंज नहीं होगा. सो ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को मैं अगले वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगा, ये बात समझ में आया, तो आपको अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा इसके ऊपर एक सेपरेट छोटा सा वीडियो. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन यू हैव टू एलिमिनेट दीज बैरियर्स, बिकॉज दीज बैरियर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड. इट इज लाइक ड्राइविंग ए कार विथ हैंड ब्रेक्स ऑन. अगर कार का हैंड ब्रेक लगा हो तो आप कैसे एक्सीलेटर दबाने से आगे जाएगा, बिकॉज वो तो पकड़ा हुआ है वहां पे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू क्रिएट डिजायरेबल कॉजेज नाउ सो दैट यू गेट डिजायरेबल इफेक्ट इन दी SSB इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस में. सो इनफैक्ट आई कीप सेइंग लॉ ऑफ कर्मा में बार बार बोलता भी रहता हूँ, every cause that you create today will create an effect in the interview. So every cause will have an effect. So desirable cause will have desirable effect, and undesirable cause will have undesirable effect. And every effect will become the cause for the subsequent effect. So if you today improve yourself as a person, it will have an effect, desirable. If you don't work on yourself and if you keep working on TAT, WAT, it will also have an effect. And that effect will have a further effect in terms of your final recommendation. So आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक आप अपने efforts में दिशा नहीं दोगे, vector effort नहीं लगाओगे, तब तक आप इस चूहे की तरह घूमते रहोगे. You will put lot of फालतू का effort, directionless effort, but वो result नहीं देगा. So I hope you have understood till there. Now if you have understood that, now in your preparation for SSB and also in your life, you would be facing large number of problems, है ना? Like I have problem, you have problem, all of us have problem. लेकिन हम सबके अंदर problem को solve करने की जो capacity है वो अलग अलग है. So all of you want to become officers in the armed forces, but it is only 3.6% people who are able to make it. इसका मतलब rest of them are not able to achieve it. क्यों? गोल सेट किया, but गोल सेट करके उस गोल को अचीव करने का जो means adopted है, they are not taking care of it. And I told you in one of the videos, स्वामी विवेकानंद का, once you have set the goal, now forget about the goal. Now you have to entirely focus on the process to achieve that goal. हम उस विधि पे ध्यान नहीं दे रहे, हम वहाँ पे TAT, WAT में उलझ गए. डेड बॉडी ड्रामा, फट्टा इज इक्वल ब्रिगेडियर, कोर क्वालिटी हाइड कर दो, गलत चीज़ में फंस गए. सो आई विल इंट्रोड्यूस टू एन अप्रोच. मुझे इसके बारे में फीडबैक देना, उसका फीडबैक अगर अच्छा लगा तो उसके ऊपर और आगे वीडियो पे काम करेंगे. द इनसाइड आउट अप्रोच. द इनसाइड आउट अप्रोच, बदलाव भीतर से करना है, और बदलाव जब भीतर से करेंगे उसका प्रभाव बाहर आएगा. OLQ छिड़कना नहीं है, OLQ झलकना चाहिए, और झलकने के लिए वो अंदर से बाहर आना चाहिए. सो किसी भी प्रॉब्लम को, जीवन का प्रॉब्लम हो या SSB की तैयारी हो, या आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन हो, या आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, स्ट्रेस हैंडलिंग हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हो, किसी भी प्रॉब्लम को हम 2 भाग में मोटा मोटा बांट सकते हैं. कितने भाग में? 2. पहले को बोलेंगे सर्कल ऑफ कंसर्न. कंसर्न मतलब ये प्रॉब्लम का वो हिस्सा है जिसकी मैं सिर्फ चिंता कर सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ? जिसकी मैं सिर्फ चिंता कर सकता हूं. और चिंता चिता समान. चिंता का मतलब क्या है? सिर्फ कंसर्न, सिर्फ मैं वरी कर सकता हूं, चिंता कर सकता हूं, है ना, वरी. तो आप कितनी भी चिंता करो, चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. सो पहला है, किसी भी प्रॉब्लम को हम
एक कैसे नजरिए से देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ कंसर्न, मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन वीक है, चल जाएगा ना, मेरा करंट अफेयर्स वीक है, चल जाएगा ना, मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल ठीक नहीं है, चल जाएगा ना। मतलब आपके सवाल से ही पता चल जाएगा कि आपका फोकस सर्कल ऑफ कंसर्न पे है, ना कि सर्कल ऑफ अगला जो भी है सर्कल ऑफ। दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो दो दृष्टिकोण है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रॉब्लम कितना भी बड़ा, देखो ये बड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक हिस्सा अभी भी मेरे नियंत्रण में, मेरे कंट्रोल में। सो दिस इज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब वो हिस्सा प्रॉब्लम का जो आज भी मेरे कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी गरीब थे, इसलिए मैं गांव में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, वहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं हुआ, पब्लिक स्पीकिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी वीक है। लेकिन क्योंकि मैं इसे सर्कल ऑफ कंसर्न पे रखता हूँ, तो मैं सिर्फ चिंता करता रहता हूँ और इसको इम्प्रूव नहीं करता। और अगर इसी जगह मैंने इसको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रख दिया कि भैया मेरा चलो कमज़ोर तो है, लेकिन मैं इसे, अभी मेरे पास 3 महीने हैं, 3 महीने में मैं इसके ऊपर अगर काम करूंगा तो इसे इंप्रूव कर सकता हूं, दैट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप प्रॉब्लम के उस भाग पे ध्यान दे रहे हो जो भाग आज भी आपके नियंत्रण में है। भले ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये हिस्सा आपके कंट्रोल में। हम प्रॉब्लम के उस हिस्से को ढूंढ रहे हैं जो मेरे आज भी नियंत्रण में है, बजाय कि उस हिस्से में फोकस करना जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। दिस अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड द इनसाइड आउट अप्रोच। नाउ अगर आपको यहां तक समझ में आया तो मेरे को फीडबैक में लिख के बताना कि क्या समझ में आया। लेट मी टेक इट लिटिल मोर फर्दर। नाउ जीवन में किसी भी प्रॉब्लम को देखने के हमारे 2 नजरिए। वन इज रिएक्टिव फोकस। रिएक्ट मतलब बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया कर देना, रिएक्ट कर देना, है ना। रिएक्टिव फोकस में हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा एनर्जी को केंद्रित कर देते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न पे, जिस चीज़ की हम चिंता करते हैं। कुछ लोग, हमारी मम्मियों भी होती ज़्यादा, वो चिंता ही करती रहती बेचारी ना, प्यार तो करते हैं हमें, लेकिन प्यार से ज़्यादा वो चिंता करते रहते हैं। और चिंता, मैंने बोला, चिता समान ना। एक वर्ड है, एक स्टेटमेंट है, एनर्जी फॉलोज थॉट्स। क्या मतलब है, आपका जो एनर्जी है वो फॉलो करता है आपके थॉट्स के लिए। मैंने पिछला वीडियो में जो मानसा के ऊपर बनाया था उसमें मैंने बताया कि आप जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा आपका साइकोलॉजिकल एनर्जी आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है, रिएक्टिव फोकस में क्योंकि हम सर्कल ऑफ कंसर्न पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमारा जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है वो कहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, सर्कल ऑफ कंसर्न, लाल रंग पे, ये जो लाल रंग है इसमें। और एनर्जी जहां जहां फ्लो हो जाएगा वहां क्या हो जाएगा, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। सो व्हेन यू फोकस योर एनर्जी ऑन सर्कल ऑफ कंसर्न, इस एनिमेशन पे देखना, आपका सर्कल ऑफ कंसर्न घटना शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम, या राई का पहाड़ बनाना। अब आप, छोटी सी बात है, देखो एसएसबी में आप ऑफिसर बनना जा रहे हो और आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है। मेरा भी कमजोर था, मैं भी एक सिपाही से बना हूं, तो मैं जब सिपाही था तो मेरा साला पावर ऑफ एक्सप्रेशन था ही नहीं, लेकिन मैंने उसे सर्कल ऑफ कंसर्न में नहीं डाला, मैंने उसे डाला सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, कि मैं इसे बदल सकता हूं। मुझ में एक आत्मविश्वास था कि मैं अगर थोड़ा इसके ऊपर काम करूं तो मैं इसे बदल सकता हूं। लेकिन आज मेरे पास जो लड़के लड़की आते हैं, ज़्यादातर उनकी सोच ये होती है, वो उनका सवाल ही बड़ा उल्टा होता है। वो बोलते हैं कि सर मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन वीक है ना, चल जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, वो फोकस कर रहे हैं सर्कल ऑफ कंसर्न में और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट मिल जाएगा। नो, व्हेन द कॉज इज अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल कॉज विल प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट। क्योंकि ये तो आपका, अरे आप कैसे दूसरों को प्रेरित करोगे जब खुद को ही प्रेरित नहीं कर पा रहे हो। आपको एक अंग्रेजी में अटक गए आप, क्योंकि एक अंग्रेजी को डेवलप, अरे गरीब है पापा, वो है, आज तो आप साला सिटी में रहते हो, आज तो आप आर्मी में आ गए, आज तो आपके पास पैसा आता है, सैलरी आती है, आप, देयर आर सो मेनी वेज टू डू दैट। तो इसको समझना। सेकेंड फोकस इज कॉल्ड, तो सर्कल ऑफ रिएक्टिव फोकस में क्या होता है, ये फोकस इज ऑन सर्कल ऑफ कंसर्न, एंड बिकॉज एनर्जी वहां फ्लो होता है तो सर्कल ऑफ कंसर्न क्या हो जाता है, इस तरह से एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने से जो ग्रीन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो रिड्यूस हो जाता है और प्रॉब्लम बड़ा दिखना शुरू होता है। देखो प्रॉब्लम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से ही, और कुछ लोग अपने आप को इतना डिप्लीट कर देते हैं कि वापस बाउंस बैक की कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह से सोचते हो, सर्कल ऑफ कंसर्न में एनर्जी लगाते हो, ज़्यादा चिंता करते हो, वरी करते हो, लेकिन एक्शन नहीं करते हो, देन एसएसबी आपके लिए नहीं बना। वी डोंट वांट पीपल लाइक दैट। वी वांट कि ये हरा एक बिंदी के बराबर भी हो। Even if this green is like a dot, you should be able to focus on that. Look at Wing Commander Abhinandan. No, sorry Major, I'm not supposed to tell you.
देखो कहाँ पे पीओके में फंस गया था, लाइफ एंड डेथ वाज एट स्टेक बट हिज फोकस वाज व्हाट इज इन माय कंट्रोल। लुक एट विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, पता है मरना है, लेकिन उसका सर्कल ऑफ कंसर्न इन्फ्लुएंस क्या था कि मरना तो है ही है, लेकिन ऊपर टॉप तक पहुंच के मरना, ताकि आई कैन लॉन्च द ग्रेनेड्स एंड आई कैन न्यूट्रलाइज दोज पीपल हु आर फायरिंग फ्रॉम टॉप। सो मरते टाइम भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ध्यान है। दैट इज द काइंड ऑफ कैपेसिटी पीपल आर लुकिंग फॉर इन द एसएसबी। वी रिक्वायर पीपल विद एक्सट्रीम स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी। इसका मतलब एक्सट्रीम स्ट्रेस में भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ध्यान दे पाने वाले, मतलब बजाय के सर्कल ऑफ कंसर्न में। लुक एट मोदीज लीडरशिप, यू नो, आई रियली अप्रिशिएट मोदी फॉर हिज लीडरशिप स्किल्स एंड हिज एबिलिटी टू टेक टफ डिसीजंस। कितना भी प्रेशर आ जाए, बंदा इज केपेबल ऑफ टेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन। द डिसीजन में गो रॉन्ग और राइट बट ही टेक्स डिसीजन। मनमोहन सिंह जी देखो, वो कोचिंग वाले इन्फ्लुएंस में पड़े रहते थे, सोचेंगे, बोलेंगे, कोचिंग वाले सर से पूछेंगे, उनके कोचिंग वाले सर कौन है आपको पता ही है। सो दैट्स अ डिफरेंस इन द स्टाइल ऑफ फोकस, है ना। हम निंदा करेंगे, वो नहीं। मोदी बोलता जाओ ठोक के आओ, बालाकोट करो, उरी करो, वड़ावा करो, ही टेक्स डिसीजन। सो सिमिलरली एसएसबी में जब आप जाओगे, अगर आपका रिएक्टिव फोकस है, आपकी काम वाली बाई प्रेशर में आ जाती है, you are not a suitable person for the armed forces. The second option is proactive focus. प्रॉब्लम वही है, वही प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम वही रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम के उस हिस्से पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं जो हिस्सा आज भी हमारे कंट्रोल में है। इट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द एरिया दैट इज स्टिल इन योर कंट्रोल। बजाय की चिंता करने की हम एक्शन करते हैं। ऐसे लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? एक्शन ओरिएंटेड। तो आप जरा अपने आप से सवाल करो, आर यू ए एक्शन ओरिएंटेड पर्सन और आप सिर्फ चिंता करते हो? सो चिंता अगर ज़्यादा करोगे, दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। तो आपने देखा था, ओवर थिंकिंग करके एक वीडियो भी बनाया था मैंने पिछले बार में, लास्ट वीक था शायद। तो इफ यू वन ऑफ दोस हु थिंक्स टू मच, इसका मतलब है यू आर फोकसिंग मोर ऑन द कंसर्न दैन फाइंडिंग ए सोल्यूशन। अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है, यू हैव टू नो हाउ टू डिटैच फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड फोकस ऑन दैट पार्ट विच इज स्टिल इन योर कंट्रोल, विच इज कॉल्ड प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो भी बनाए हुए है ना। उसके अंदर आपको मैंने बताया कि इसको डेवलप करना, तो यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट, इमेजिनेशन, कॉन्शियस एंड इंडिपेंडेंट विल, जो 5 एलिमेंट्स है। आई डोंट नो आपको याद है या नहीं है, नहीं है तो देख लेना उस वीडियो को। सो व्हेन यू फोकस ऑन circle of influence, which is called the proactive focus, उस टाइम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम इज मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कमजोर है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत बुरा है, बहुत डर लगता है मेरे को पब्लिक स्पीकिंग, दैट्स ओके। लेकिन मेरे पास अभी 3 महीने हैं और ये पब्लिक स्पीकिंग जो है मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ अगर मैं इसके ऊपर एनर्जी लगा दूँ। सो व्हाट डू, आई पुट माई फोकस ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब ग्रीन पे। एंड क्योंकि ग्रीन पे एनर्जी जा रहा है तो ग्रीन विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। एनिमेशन को देखना ना, द ग्रीन एक्सपैंड्स एंड द रेड रिड्यूसेस। दिस इज द कैपेबिलिटी दैट ऑल ऑफ यू हैव टू डेवलप। अगर आपको लीडरशिप पोजीशन पे जाना है, फौज में तो ये चाहिए, इवन घर में चाहिए। घर में भी तो मुसीबत होता है, कोरोना होता है, ये होता है, वो होता है, कभी फेल हो गए, कभी एक्सीडेंट हो गए, कभी फाइनेंशियल नुकसान हो गया। हर जगह आपको 2 दृष्टिकोण चाहिए। क्या? सर्कल ऑफ कंसर्न, प्रॉब्लम को समझो और वहां से डिटैच हो जाओ और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में फोकस करो। इस कैपेबिलिटी को अगर आपने डेवलप कर लिया, यू आर ऑलरेडी ए लीडर, यू आर ए पोटेंशियल लीडरशिप मटीरियल। यही एसएसबी ढूंढ रहा है। तो हमें एसएसबी में उन लोगों को ढूंढना चाहते हैं जिनको मैं टीएटी का पिक्चर दिखा दूं, डेड बॉडी, तो डेड बॉडी को देख के वो उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे जिस एरिया पे उनको कंट्रोल नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि सर्कल ऑफ कंसर्न में आप सिर्फ चिंता कर सकते हैं। तो अगर डेथ हो गया, यू हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट इट, एंड देन दे विल लुक फॉर दैट पोर्शन जो अभी भी उनके कंट्रोल में। ओके, शिफ्ट। सो डेथ को एक्सेप्ट करेंगे और शिफ्ट करेंगे कि व्हाट इज इन माय कंट्रोल। दिस स्विचिंग फ्रॉम सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न, मतलब ये इट्स अ म्यूचुअल स्विचिंग हर बार। दिस स्विचिंग इज एसएमएल में मैं इसको बोलता हूँ सर्प दृष्टि और गरुड़ दृष्टि में अपने आप को स्विच करना। इसके लिए हमें एक माइंडसेट भी डेवलप करना पड़ेगा। देखो एसएसबी में जाते बहुत लोग घबराते हैं। किस लिए घबराते हैं? कि सर मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा पता नहीं रेकमेंड होगा नहीं होगा। छटपटाहट है। क्या है? कैंडिडेट में बहुत ज़्यादा छटपटाहट है। उदाहरण के लिए अगर एक किसान है,
अब किसान है तो भैया उसको खेत में बीज बोना पड़ेगा, खेत जोतना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, वीड्स निकालना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करता है, वो इतना आलसी है कि वो पेड़ के नीचे सोता रहता, बोलता अभी धूप बहुत ज़्यादा बाद में करूँगा। लेकिन सोते हुए चिंता करता फसल अच्छी आएगी या नहीं आएगी। और उसके बाद में अगले दिन फिर वही करता, फिर वही करता, फिर वही करता। उसको पता है खेत में काम नहीं किया, खाद नहीं डाला, बीज नहीं बोया, लेकिन चिंता क्या करता है, रेकमेंड होना, फसल काटना। अब जब एसएसबी जाएगा, उसे पता है मैंने खेत में काम ही नहीं किया। अब जब खेत में काम ही नहीं किया तो फसल कहाँ से आएगा। तो ये बहुत एक फॉल्टी थिंकिंग है कि मैं खेत में बीज ना बोऊं और फसल खाने की उपज करूं। नाउ दिस इज लाइक आप मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन रिजल्ट पाना चाहते हो। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। ये मैंने जैसे पिछले बार में मानसा वीडियो में बनाया था, ये कीकर के पेड़ में आम बांधने का काम कर रहे हो। नाउ दिस एटीट्यूड मस्ट चेंज, अदरवाइज ये 3.6 चेंज नहीं होगा। आप सिग्नेचर कोर्स कर लो, आईएसओ कर लो, 2.5 एकड़ की जमीन में चला जाओ, हम पैसे वाले बन जाएंगे लेकिन आपका ग्रोथ नहीं होगा। बिकॉज आपका ग्रोथ तभी होगा व्हेन यू नो द आर्ट ऑफ स्विचिंग फ्रॉम सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर मेरी बात ये समझ में आया तो आप जरूर मुझे बताना। सॉरी सर, मुझे आप लोगों से, बच्चों लोगों से, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग। क्या रॉन्ग होगा एसएसबी में? ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉन रेकमेंड हो जाओगे। एंड आप होना भी चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया। किसान को फसल क्यों मिलना चाहिए जब किसान खेत पे काम करने के लिए विलिंग नहीं है? दूसरा है, स्टार्ट बीइंग एक्साइटेड अबाउट व्हाट कैन गो रॉन्ग। सो व्हाट कैन गो राइट ना। एक्साइट होने के लिए व्हाट कैन गो राइट, ये फसल अच्छी तो तभी आएगी ना जब आप कॉस्ट क्रिएट करोगे। सो फोकस ऑन द प्रोसेस। When you create desirable cause, you will have a reason to get excited about the desirable outcome, because outcome will follow what you put it in the input. आप इनपुट पे काम करो तभी तो आउटपुट आएगा अच्छा। तो मुझे बताना क्या समझ में आया। तो प्रोएक्टिव फोकस में, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, even when it is very small, it starts growing because energy is flowing there, and when it expands in such a manner that आपका सर्कल ऑफ कंसर्न खुद ही घटना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, when you work on yourself and when you improve your personality, and धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपका इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, उससे आपका आत्मविश्वास उठना शुरू हो जाएगा। जब आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल उठेगा, आपका एबिलिटी टू एक्सप्रेस उठ जाएगा, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव फोकस टू प्रोएक्टिव फोकस। डेड बॉडी का ड्रामा, मुझे बताओ ये कैसे प्रोएक्टिव फोकस है? कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, बुक में लिख के देते कैसे, स्प्रिंकल OLQ, ये कैसे प्रोएक्टिव फोकस है? इट इज नॉट। व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, व्हेन यू ग्रो एज ए पर्सन, दैट इज द प्रोएक्टिविटी दैट आई एम लुकिंग फॉर। और इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना कि रिजल्ट क्या होगा। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, फल विल फॉलो। When the process is correct, the target has to come. The effort has to yield that result. So Vivekananda ka thing, you must focus on the process, the means adopted to achieve the goal. Dead body का ड्रामा is not the right means. I hope you've understood this. And इसके लिए आपको 2 दृष्टिकोण को डेवलप करना पड़ेगा, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहला है सर्प दृष्टि, जिससे आप प्रॉब्लम को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इट इज कॉल्ड हार्ड थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, सर्प दृष्टि। एंड देन हैविंग अंडरस्टूड द सर्प दृष्टि, यू शुड rise above and get into the circle of influence and look for Garud Drishti, creative thinking, problem solving skills। फिर देखो कितना मजा आता है। सो आपको दोनों दृष्टिकोण चाहिए। व्हाट इज दैट? सर्प दृष्टि भी, गरुड़ दृष्टि भी। लेकिन सर्प दृष्टि में अगर ज्यादा अटक गए, इट विल बिकम रिएक्टिव फोकस, इट विल लीड टू ओवर थिंकिंग, इट विल लीड टू हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग। तो मुझे फीडबैक देना, व्हाट इज हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग? सो एसएसबी के ज़्यादा लड़के लड़कियां, मुझे तो साला हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग लगता है। लड़के चिंता ज़्यादा करते हैं, एक्शन नहीं लेते। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एक्शन दैट यू आर टेकिंग इफ यू हैव डेफिशिएंसी? एक्शन बताओ, एक्शन। मुझे पता नहीं बाकी कोचिंग में सब अच्छे लड़के जाते हैं, मेरे पास ही गलत गड़बड़ वाले आते हैं, या मैं जो दिखता वो बोल देता हूँ। मुझे नहीं पता व्हाट इज द ट्रुथ, बट मुझे एक चीज़ पता है, यू हैव टू शिफ्ट योर अप्रोच टू एसएसबी एंड लाइफ। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये जीवन के लिए है, ना कि एसएसबी के लिए। एसएसबी सिंपली अ सबसेट ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, जीएसटी लगा दिया, गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, तुम और मैं कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सो इट इज पार्ट ऑफ अ सर्कल ऑफ कंसर्न।
इसकी हम सिर्फ चिंता कर सकते हैं। सो कोई मतलब नहीं, चिंता करने से कुछ होना नहीं है। गवर्नमेंट कंपटीशन, भैया आज चाइना बड़ा कॉम्पिटिटिव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर रहा है, पाकिस्तान उल्टा पुल्टा कर रहा है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नो यू कैन नॉट, है ना। नेक्स्ट इज क्लाइमेट, आज मौसम खराब है, गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? अगर है तो कर लो। यू हैव टू डिसाइड वेदर व्हाट आई एम टेलिंग इज इट विद इन योर सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अदर्स बिहेव है, दूसरे कैसे बिहेव करते हैं, अलाहाबाद इज रिजेक्शन सेंटर, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? इवन इफ इट इज नॉट, बट अगर मानते हो, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? यू कैन नॉट, है ना। एक्सटर्नल सिचुएशन, बाहरी परिस्थिति, बहुत सारी बाहरी परिस्थिति, आप चाइना के साथ दोबारा पंगा शुरू हो गया इंडिया का, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? यू, if you're in a position to do it, do it. If you're not in a position to do it, it is in your circle of concern. So you should be able to differentiate that. है ना। कोरोना क्राइसिस, भैया कोरोना तुम्हारे और मेरे घर में कुड़कुड़ा होने से तो कुछ नहीं होगा, वो इट विल एग्जिस्ट। सो वी हैव टू सी विद इन कोरोना व्हाट इज विद इन अ सर्कल ऑफ क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस, ना। लॉस ऑफ डियर वन, किसी के साले घर में माता पिता का डेथ हो जाता, कुछ हो जाता, कोई तकलीफ हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता, कुछ होता है, इज इट विद इन योर कंट्रोल? वंस इट हैज हैपेंड, इट इज नॉट। सो वी शुड नो कितना उसके ऊपर एनर्जी लगाना, बिकॉज अगर उसमें ज़्यादा एनर्जी लगा दिया तो दर्द बढ़ जाएगा, बिकॉज सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ जाएगा और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस घट जाएगा। सिमिलरली हर परिस्थिति में आपके विचार, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके वैल्यू सिस्टम, आपका विजन, आपका आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ, आपका मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति, आपकी भावनाएं और आपके चॉइसेस और आपके रिस्पॉन्सेस, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। इसको ठीक करना है, एसएसबी के लिए भी और लाइफ के लिए भी। फिर देखो, और इसको करने के लिए वी मस्ट हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी प्रॉब्लम में व्हाट इज विद इन माई कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट विद इन माई कंट्रोल, और वी शुड ओनली देन वी शुड बी एबल टू अलाइन आवर एनर्जीज to the circle of influence rather than focusing on circle of concern. जब हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो जीवन हो या एसएसबी हो, it is easy to align our expectation. हम जब तक इस अलाइनमेंट को नहीं समझेंगे, हमारा एफर्ट में दिशा नहीं आएगी, एंड वी विल बी यूजिंग स्केलर एफर्ट, और फिर हम इस बंदे की तरह खींचते रहेंगे, 11 बार एसएसबी चले जाएंगे, लड़ते रहेंगे, वो करते रहेंगे, बिकॉज वी डोंट नो द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको रिजॉल्व करें, एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, एंड दैट्स वेयर द होल आइडिया ऑफ स्वॉट एनालिसिस। नाउ इस अंडरस्टैंडिंग को करने के लिए मैं एक सेरेनिटी प्रेयर देता हूँ। इसको आप मैं तो बोलता हूँ इसको प्रिंट लगा के अपने टेबल के सामने रख लो, क्योंकि इससे आपको फोकस बनने में मदद आएगा। सेरेनिटी प्रेयर क्या बोलता है? भगवान, जो चीज़ मैं बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करने की शक्ति दो। तो इसका मतलब क्या है? ये सर्कल ऑफ कंसर्न के लिए। तो अगर डेड बॉडी दिया है तो भैया इसे आप बदल नहीं सकते, इसे स्वीकार करने की शक्ति दो। तो एसएसबी कोचिंग में भी जाते हो तो बोलो, सर प्लीज डोंट चेंज, बिकॉज ये डेड बॉडी को I can see it is dead body, let me accept it as the dead body and then let me see where can I focus now. तो भगवान, जो मैं नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करने की शक्ति दो, जो बदल सकता हूँ वह करने का साहस दो। सो अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, इसे आप बदल सकते हो, सिर्फ इसे बदलने का साहस चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। अगर दृढ़ निश्चय है तो मैंने बदला है, आप भी बदल सकते हो। मेरे तो 10th में 53% है, आप लोग तो बहुत अच्छे हो मुझसे। At your age I was very bad, but I have been able to do it. You can also do it. Only आपको उसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रखना पड़ेगा, और बदलने के लिए आपको भगवान से क्या चाहिए? अपने भगवान से, अल्लाह से, क्राइस्ट से या राम रहीम जिससे भी है, आपको क्या चाहिए? साहस चाहिए। भगवान, जो मैं नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करने की शक्ति दो। सो कोरोना का जो प्रॉब्लम है, यू हैव टू एक्सेप्ट। अगर घर में किसी का लॉस हो गया, डेथ हो गया, कुछ हो गया, वी हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट। वी कैनॉट फाइट विद दोज डिसीजंस ऑफ गॉड। और जो मैं बदल सकता हूँ उसे करने का साहस दो। बहुत सारे लड़के लड़कियों में ये साहस की कमी दिखती है, इच्छा शक्ति, विल पावर बोलता हूँ। विदाउट इच्छा शक्ति आप अपने फोकस को सर्कल ऑफ कंसर्न से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं ला सकते। और हम कोचिंग वाले आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि डोंट वरी बेटा, तुम सर्कल ऑफ कंसर्न करते रहो, हम तुम्हारा रिकमेंडेशन करा देंगे डेड बॉडी का ड्रामा बना के और कोर क्वालिटी छुपा। गलत ट्रेनिंग है, हमारी मंशा में खोट है। जो बदल सकता हूं वह करने का साहस दो। सो प्लीज जनरेट दैट विल पावर, इनर विल पावर। बेटा ऑफिसर बनना, अंदर ये ताकत चाहिए। कोचिंग के बैसाखी पे नहीं जाओ,
है ना, और दोनों के अंतर का ज्ञान दो. सो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू कीप इट इन सर्कल ऑफ कंसर्न एंड व्हाट शुड यू कीप इट इन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. इसका डिफरेंशिएशन. वरना हम जीवन में क्या करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रखते हैं, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होना है उसे हम रख देते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न में. हम टीएटी ठीक करते रहते हैं. नो, खुद को ठीक करो, टीएटी ठीक हो जाएगा. सेल्फ डेवलपमेंट को, अपने आप के डेवलपमेंट को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रखो, ना कि टीएटी को. टीएटी विल हैपन. इसी का इंग्लिश में है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस. इस सही और गलत का भेद, आज तुम्हें एसएसबी जा रहे हो, तुम्हें तो सही गलत का भेद ही नहीं है. आप सवाल पूछो ना, कैसे डेड बॉडी का ड्रामा एक सही रैशनल थिंकिंग है. यू आर नॉट थिंकिंग बिकॉज यू हैव नॉट बीन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. और इसका हम भरपूर फायदा उठा रहे हैं, हम पीपल लाइक मी हु आर इन कोचिंग, बिकॉज आपका ये सेंस डेवलप. सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली नोट इट डाउन एंड इसको जरा अपने रूम में लगाओ. जीवन में, आपके जीवन में भी बहुत तकलीफ आएंगी और आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके ऊपर रोते रहने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा. वरना इफ यू फोकस टू मच ऑन सर्कल ऑफ कंसर्न, देन यू विल बिकम द प्रॉब्लम. Instead of problem solver, your attitude itself will become the problem, and then so you are the problem, है ना. सो इसके ऊपर हम सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के इसके ऊपर काम होता है काफ़ी, एंड हाउ टू शिफ्ट दिस विजन्स एंड ऑल दैट थिंग एज पार्ट ऑफ अ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के प्रोग्राम में आपको पता है, विच इज़ दी 90% पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट मॉड्यूल. एंड द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7th September, दैट इज मंडे ऑनवर्ड्स. इट्स अ 1 week, यू कैन एक्सटेंड इट टू 2 weeks सब्सिक्वेंटली. एंड क्या बोलते हैं, 7th September to 12th September तक है. दोज ऑफ इंटरेस्टेड, यू कैन श्योरली व्हाट्सअप मी ऑन 8275577650, 8275577650. WhatsApp करना. I'll send you the details. Next batch is starting from 7th February to 12th September. It is a 1 week batch, and if you feel you can extend it by another 1 week. In fact, all candidates except for 1 or 2 exception because of financial reasons or something, they have all extended. Some directly join for 2 weeks. Invariably, it is so powerful module that people extend. So that choice you can always exercise. And this SML program is not specific to SSB. It is a life oriented, so anybody can appear. Your parents can appear, your brothers, sisters, whether you're going for whatever services or you're having some problems in life, you can appear. And AFOSOP is a only SSB focused वो है, which is also starting from 7th September to 12th September. It will be a GTO week. So जो AFOSOP का GTO week के लिए 1 week का GTO week के लिए जाना चाहते हो, they can also separately contact. So both 1 week का SML and 1 week का GTO, both is starting from 7th September to 12th September, 1 week duration का. So those who are interested, you are most welcome to contact me at 8275577650. Kindly share this information with your friends so that maximum people benefit. And once again, let me remind you, on 2nd September 2020 from 6 p.m. to 8 p.m, Wing Commander Sandeep Raj will be taking a free gap analysis workshop. To registration is compulsory. 7088993444 is the number on which you have to send the WhatsApp message. Share this information with your friends, and once you WhatsApp, you will get the password and the ID for that event, which is on 2nd September, Wednesday. So hope to see you in large number for both the free workshop and the SML / the GTO batch. Thank you, and may God bless you. I hope these videos are helping you. I'll request you to post your comments so that I can make more videos. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.